شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ادھر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اب آتے ہیں، چونکہ ٹائم کا اختصار ہے، دو چار باتیں میں عرض کر کے اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھوں گا۔ جہاں تک تربیت کا تعلق ہے، انجمن طلبہ اسلام جنریشن میں، ینگ جنریشن میں واحد ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ انسان اپنے آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کون سی دنیا ہے۔ سپوز آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے اندر ایک پیغام اٹھتا ہے، آپ کے اندر ایک میسج اٹھتا ہے کہ ایسا معاشرے میں ہونا چاہیے، تو جب آپ انجمن طلبہ اسلام میں آتے ہیں تو آپ کو ایک پلیٹ فارم کی شکل میں یہ چیز ملتی ہے۔ جب آپ تعارفی نشست میں آتے ہیں تو تعارف کرواتے ہیں، آپ کو بولنے کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنا میسج کس طرح دوسرے بندے کو کنوے کرنا ہے۔ آپ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، کوئی بندہ وکیل بنتا ہے، کوئی ٹیچر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، تو جب آپ انجمن طلبہ اسلام کی پلیٹ فارم سے یہ بات سیکھ چکے ہوں گے، یہ بات صحیح معنوں میں سیکھ چکے ہوں گے، تو آسانی کے ساتھ آپ اپنی جو بات ہے دوسرے کو بتا سکیں گے۔ سیکنڈلی، انجمن طلبہ اسلام کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انجمن طلبہ اسلام نے بالخصوص اہل سنت و جماعت کو وہ قیادت فراہم کی ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انجمن طلبہ اسلام میں ایسی تربیت کی جاتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو معاشرے میں بہتر پروموٹ کر سکتا ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں کہ آج تک پاکستان کو بنے ہوئے آئی تھنک کہ 64 سال گزر چکے ہیں کہ جب بھی پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا، صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے یا قومی اسمبلی کا، اس میں آج تک تلاوت کے بعد نعت نہیں ہوتی تھی، تلاوت کے بعد نعت نہیں ہوتی تھی۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کو خاصہ حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے سابق رکن طاہر ہندلی ایڈوکیٹ ایم پی اے ہیں سیالکوٹ سے، انہوں نے صوبائی اسمبلی میں یہ اپنی قرارداد پیش کی کہ جب بھی صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تلاوت کے بعد نعت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ قرارداد ریکمینڈ ہوئی اور تا دم آخر اس بات پہ کاربند رہے گی، صوبائی اسمبلی بھی اور قومی اسمبلی بھی۔ اور دیکھیں اس طاہر ہندلی کی تربیت کس نے کی؟ وہ طاہر ہندلی نے کہاں سے یہ سبق سیکھا؟ اس نے انجمن طلبہ اسلام سے ہی سیکھا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ذہن میں یہ چیز پیوست کر دی گئی کہ جہاں ذکر خدا ہو وہاں ذکر مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، دوستو، پیارے دوستو، اگر آپ یہ پیارا پیغام، جیسے بھائی جان، ان کا نام نہیں مجھے یاد، وہ بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ ہمارا مشن فروغ عشق رسول ہے، ہمارا کاز، انجمن طلبہ اسلام کا کاز، انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین ایک ہی ہے کہ طلبہ کے دلوں میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر نہ ہوگا۔ دوستو، جب ہم معاشرے میں داخل ہوتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو ہم قرب و جوار میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی جو طلبہ تنظیم ہے وہ کسی سیاسی وڈیرے کا نعرہ لگا رہی ہے، کوئی جو ہے عمران خان کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی شہباز شریف کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ آپ سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور انجمن طلبہ اسلام 1968 20 جنوری کو اسی بیس پہ بنائی گئی تھی کہ جب تحریت چھا رہی تھی، سیدی مرشدی یا نبی کی جگہ یا مدودی کی گندی فضا جب معاشرے کو گندا کر رہی تھی، تو اس وقت انجمن طلبہ اسلام کا یہ پرکیف نعرہ
सैयदी मुर्शदी या नबी की बेस में गूंजा था। सुभान अल्लाह। और आज ये नारा हमारे पास इमानत की शक्ल में पहुंचा है, तो हमने इस मानत को आगे डिलीवर करना है। तो आगे डिलीवर हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा जो करैक्टर है वो खुद साफ हो। आप मुआशरे में जाएं, किसी को दावत पेश करें कि भाई आप ATI ज्वाइन करें, तो आपसे पूछे भाई ATI क्या है, उससे ये ना पूछना पड़े कि ATI क्या है, वो आपको ही देखे उसे पता चले ATI ने इसकी तरबियत ऐसे की है कि वाक़यातन ये बंदा वाक़यातन बनता। सुभान। अंजुमन तलबा इस्लाम का ये खासा है कि अंजुमन तलबा इस्लाम किसी वडेरे की जमात नहीं, खालिस्तन सैयदी मुर्शदी या नबी की फ़ज़ाएँ बुलंद करने वालों का एक जमे गफ़ीर का नाम ATI। उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। और आप देखते हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम का यूनिट से लेकर मरकज़ तक हर साल दस्तूरी तरीके के साथ, जमहूरी तरीके के साथ इलेक्शन होता है, नया नाज़म बनता है, नया जनरल सेक्रेटरी बनता है, पूरी कैबिनेट नई बनती है। यही जमहूरी तरीका है जिसमें अंजुमन तलबा इस्लाम स्टेप टू स्टेप अपने कारकुनान की, अपने उमरा की, अपने अराकीन की तरबियत करती है। तो दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में आपसे यही मैं आखिरी अल्फाज कहना चाहूँगा कि हम में इखलास की कमी है। जब हम में इखलास होगा, हमारी नीयत खालिस होगी, तो यकीनन हमें किसी बात को किसी जगह पे ज़ेर नहीं होना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी आपका अमल आपके सामने रखना चाहता हूँ तरबियती हवाला से, कि हम में तरबियत की कमी क्यों है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा अमल था, आप पूछते नहीं, वो बंदा खुद ही समझ गया कि आप इस बात की शक्ल में मेरे सामने खड़े हैं। तो यहूदी कहने लगा, हुजूर आप इधर खड़े रहें, मैं आता हूँ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उधर खड़े हैं, वो यहूदी चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ ही जलवा फरमा। 3 दिन के बाद बाई चांस वो यहूदी वहाँ से गुजर रहा, देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हैं। बड़ा शर्मिंदा हुआ, बारगाह नबी में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इधर ही खड़े हैं। आप फरमाने लगे, या बंदे खुदा, तूने मुझे कहा था कि आप इधर खड़े रहें, मैं आता हूँ। यही बात है, यही वादे की पासदारी है। हमने वादे की पाबंदी नहीं है, हम झूठ भी बोलते हैं, नमाज से भी गाफिल हैं। ये सारी चीज़ें जब हम अपने अंदर गामजन कर लेंगे, तो हमारी जो रोशनी है, जो हमारी खुशबू है मोहब्बत रसूल की, वो माशरे को खुद ब खुद ही मुअत्तर कर देंगे। अब हम आते हैं अपने इलेक्शन की तरफ। उसके जो कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा। दस्तूरी तरीके के मुताबिक जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन होते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अमीन ही वोट कास्ट कर सकता है। दूसरी सूरत ये है कि अगर अमीन की उमरा की कमी हो, तो फिर प्रोग्राम को यानी काम को आगे चलाने के लिए जो कारकुनान हैं वो भी अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। तो तरीका बड़ा आसान है, उसका तरीका मैं आपकी गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। वो ये है, सबसे पहले आप में से कोई भी बंदा डिस्ट्रिक्ट नाज़म के लिए अपना नाम पेश करेगा, और उस बंदे के अलावा 2 बंदे उस बंदे की तायद करेंगे। उस बंदे का नाम लिख लिया जाएगा एज ए बासियत डिस्ट्रिक्ट नाज़म जलम। उस बंदे के अलावा अगर कोई और बंदा कोई नाम पेश करना चाहता है, तो वो भी नाम पेश करेगा, और उसकी तायद के लिए भी 2 बंदों की तायद होना ज़रूरी है। अगर एक का नाम पेश होता है तो वो अपनी जगह पे, अगर 2 नाम पेश होते हैं तो फिर उनके दरमियान वही जो पर्ची सिस्टम है, आपको पर्ची भी दे दी जाएगी। एक साइड पे साइन होंगे, दूसरी साइड खाली होगी। आपने जिस बंदे का नाम डिस्ट्रिक्ट नाज़म के लिए पेश किया गया है उसका नाम लिखना है, उसको फोल्ड करके हमारे पास जमा करवा देना है। इस सूरत में कि 2 बंदों का नाम पेश होता है, अगर एक ही बंदे का नाम पेश होता है तो वो बिला मुकाबला डिस्ट्रिक्ट नाज़म मुंतखब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से
जनरल सेक्रेटरी का भी इसी तरीके से जो इलेक्शन का सिलसिला है वो होता है। जनरल सेक्रेटरी और नाज़म को मुंतखब कर लिया जाता है, फिर वो अपनी बाहमी मुशावरत से जो बकाया कैबिनेट है, नायब नाज़म, फिनांस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी, ये चीज़ जो है वो बाद में वो खुद ब खुद ही एक अपना इजलास करते हैं जिसमें वो तमाम यूनिट्स के लोग, शाहों के लोग हाजिर होते हैं और अपनी कैबिनेट असर लोग वो तरतीब देते हैं। तो भाइयों, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ये बात आप जहन में रख लें कि जो आज दोस्त मुंतखब होंगे वो अपना ये माटो बना लें कि हमें आप लोग जो हैं, कोई दोस्त मुझे नहीं इलेक्ट कर रहा बल्कि मेरा इलेक्ट होना बारगाह नबवी में कबूल। सुभान अल्लाह। क्योंकि आपका मिशन कितना अजीम मिशन है कि आप सैयदी या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद कर रहे हैं, जबकि हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, हर तरफ मादियत छा रही है, हर तरफ तहरीयत छा रही है। तो आपका कितना अजीम मिशन है कि आप सैयदी मुर्शदी या नबी की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तो जो दोस्त आज इस अल्लाह के पाक घर में बैठ के इलेक्ट होगा, उससे हम बाअदब ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने दिल की दुनिया से ये वादा करेगा कि वो अपनी इस अमानत को निभाते हुए, इस अपने फरीज़े को सही मानों में समझते हुए अंजुमन तलबा इस्लाम का अजीम मिशन, अंजुमन तलबा इस्लाम का जो अजीम काज है, दस्तूरी तरीके के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेलम के हवाला से इसको सही मुनज़्ज़म तरीके से फ़आल भी करेगा और यूनिट साजी भी और दूसरे दोस्तों को भी अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल करेगा, ताकि जब हमारा नेक्स्ट इलेक्शन हो तो उसमें ये यक रुकनी काफ़िले ना हो बल्कि ज़्यादा रुकनी काफ़िले हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। माशाल्लाह, बड़े अच्छे और जामिया अंदाज में हमारे कायद जनाब मुहतरम आतिफ मुस्तफ़ा साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे। अब इस अमल को शुरू करेंगे, इलेक्शन ज़िला नाज़म अंजुमन तलबा इस्लाम। तो आपके ख़्याल में तमाम दोस्तों को मैं इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए इस बात का ये कहूँगा कि क्या ख्याल है इस सेशन के लिए कायद अंजुमन तलबा इस्लाम ज़िला जेलम कौन होना चाहिए? कोई एक नाम आपके ज़हन में कैसा आए? अंजुमन तलबा इस्लाम डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए आप सब दोस्तों से ये मुशावरत ली जा रही है कि जिसको आप समझते हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम में वो एज ए बासियत डिस्ट्रिक्ट नाज़म टाइम दे सकता है और काम भी कर सकता है और एलिजिबल भी है, उसके लिए आप अपना नाम पेश करें। उस बंदे का कोई बंदा नाम पेश करें। अंजुमन तलबा इस्लाम में आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बताऊं, ये खासा है कि कोई बंदा अपना नाम पेश नहीं कर सकता। जी जी। कोई बंदा अपना नाम पेश नहीं कर सकता। कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का बासियत डिस्ट्रिक्ट नाज़म नाम पेश करेगा, फिर उसकी तायद के लिए 2 बंदों की गवाही जो है वो ज़रूरी होगी। मेरे ख्याल से इसके लिए 2-3 मिनट के लिए मुशावरत हो सकती है आपस में। जी जी बिल्कुल, ज़रूर मशावरत हो सकती है। आप दोस्त आपस में मशावरत कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए बेशक आप थोड़ा बिखर जाएंगे, 2 मिनट के बाद तशरीफ़ वापस ले और हम जो है वो पर्ची